Hello everyone, online class 9th, subject SST, chapter 3, part 1.3, the year of depression, मद्दी के साल, the year between 1924 and 1928 से some stability at this was built on sand. German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their share on one single day. 24 October 13 million shares were sold. This was the start of the Great Economic Depression. Over the next 3 years between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, and speculators withdraw their money from the market. The efforts of this recession in the US economy were felt worldwide. सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश पर औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका के लिए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 में 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। The German economy was the worst hit by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. Workers lost their job or were paid reduced wages. The number of unemployment touches on unprecedented 6 million. On the streets of Germany, you could see men with placards around their necks saying willing to do any work. Unemployed youth played cards or simply sat at street corners or desperately queued up at the local employment exchange. As jobs disappeared, the youth took to criminal activities. The total despair became commonplace. इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी के औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद पर दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले पे लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार पर खड़े पाए जाते थे। जैसे से रोजगार खत्म हो रहे थे तो युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों के लिए लिप्त होते जा रहे थे।
चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। The economic crisis created deep anxieties and fear in people. The middle classes, especially salaried employees and pensioners, say their saving diminished when the currency lost its value. Small businessmen, the self-employed, and retailers suffered as their businessmen got ruined. These sections of society were filled with the fear of proletarianism and innocent of being reduced to the ranks of the working class, or worse still, the employed. Only organized workers could manage to keep their head above water, but employment weakened their bargaining power. Big business was in crisis. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agriculture prices, and women, unable to fuel their children's stomachs, were filled with a sense of deep despair. आर्थिक संकट ने लोगों को गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी व पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे छोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहारा का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यह ढर्रा रहा है तो वह भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएगा, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही ना हो रह जाए, और सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। लेकिन बेरोजगार की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों को पेट भर पाने में असफल औरतें के दिल में भी डूब रहे थे। Politically too, the Weimar Republic was fragile. The Weimar Constitution had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. One was proportional representation. This made achieving a majority by any one party a near impossible task, leading to a rule by coalitions. Another defect was Article 48, which gave the President the power to impose emergency, suspend civil rights, and rule by decree. Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days, and a liberal use of Article 48 at the crisis could not be managed. People lost confidence in the democratic parliamentary system, which seemed to offer no solution. राजनीतिक स्तर पर वाइमार गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमार संविधान में कुछ ऐसी कमियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था।
हर बार गठबंधन सरकार सत्ता पे आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और मध्य प्रदेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमार गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों से हो रहा था और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थी। थैंक यू।